નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખાસ કરીને આજે આપણે મોહમ્મદ રફીને યાદ કરવાના હોય છે. આ દિવસ જ એવો છે કે લગભગ ચાહકો જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક મોહમ્મદ રફી સાહેબ સાથેના સંસ્મરણો અથવા તો એના ગીતો અથવા તો એની વાતો સાંભળવા માટે બેચેન હોય જ છે. આપ જાણીએ છીએ આપણને કે રફી મંદિર પણ અહીંયા બનાવવામાં આવ્યું છે માખીજા સાહેબ દ્વારા, એ પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તો ખાસ કરીને મોહમ્મદ રફી સાહેબના પણ ચાહકો સમગ્ર વિશ્વમાં છે. 25 થી 26,000 ગીતો છે, અલગ અલગ ભાષાઓમાં એમણે ગાયા છે. હું વધારે વાત નહીં કરું કારણ કે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવાની મને પણ બહુ જ ઇંતજારી છે. મારી સાથે ચિરાગ દેસાઈ અને મોહસિનભાઈ શેખ, આ બે મહાનુભાવો જોડાયા છે. બંનેનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે દોસ્તો. થેન્ક યુ. જય રફી સાહેબ. ખાસ કરીને હું શરૂઆત કરીશ मोहसिनભાઈથી. मोहसिनભાई, ऐसे तो रफ़ी साहब को कोई लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन अगर एक जेंटलमैन कहे फिल्म दुनिया के, या तो एक जेंटलमैन सिंगर कहे, एक पाक इंसान कहे, कैसे आप उसको नरेट करोगे? आपको अगर 2-3 लफ्ज़ों या तो 2-3 सेंटेंस में अगर उनको कहना है तो क्या कहोगे आप मोहसिन जी? बिल्कुल, वो खुदाई खिदमतगार, खुदाई फरिश्ता हम कह सकते हैं. ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत, ऐसा किरदार सदियों में बड़ी मुश्किल से संकल आता है. और ये हमारे हिंदुस्तान की खुशकिस्मती रही कि मोहम्मद रफी साहब जैसे महान शख्सियत इस सरजमीन पर जन्म दिया. देखिए ચિરાગભાઈ, આમ તો મોહમ્મદ રફી સાહેબના તો એટલા બધા ગીતો છે ને એટલા બધા લોકો જાણે છે કે એની કોઈ એ નથી કે તમે કોઈ પણ ગીત પિકઅપ કરો અને લોકોના આટલા બધા વર્ષો વીતી ગયા છતાં પણ એમની યાદો લોકોના હૃદયમાંથી જતી નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક આજે પણ યુવા યંગ છોકરાઓ, જે નાના નાના છોકરાઓ જે ટેલિવિઝન શો ઉપર જે લોકો આવે છે, બાળકો આવે છે, એ લોકો ખાસ કરીને રફીના ગીતો ગાતા જોવા મળ્યા છે. રફી સાહેબને યાદ કરવા હોય તો તમે કઈ રીતે કરો? મ્યુઝિકલ યાદ, કારણ કે તમે વોઇસ ઓફ રફી છો, રફી સાહેબના લગભગ બધા જ ગીતો તમે ગાયા હશે, માણ્યા હશે, સાંભળ્યા હશે. તમે કઈ રીતના એમને યાદ કરશો રફી સાહેબ? રફી સાહેબને હું ખાલી એટલું જ કહીશ રફી સાહેબ માટે કે આટલા બધા પ્લેબેક સિંગર થઈ ગયા, પણ એક રફી સાહેબ માટે જ એવું કહેવાય છે કે ખુદા કી આવાજ, એટલે કે ભગવાનનો અવાજ કેવો હોય આપણે કોઈ સાંભળ્યો નથી, પણ ભગવાન સાથે આપણે રૂબરૂ વાર્તાલાપ કરીએ તો ભગવાન પોતે ગાય તો એમનો અવાજ કેવો હશે, તો ફક્ત ને ફક્ત રફી સાહેબ જેવો હશે. તો હું એમને ભગવાનના અવાજના સ્વરૂપમાં જ જોઉં છું. અને હા, એમના આશીર્વાદથી છેલ્લા 10 વર્ષથી આ મ્યુઝિકલ સ્ટેજની દુનિયામાં કાર્યરત છું અને રફી સાહેબના ઘણા બધા ગીતો સ્ટેજ ઉપરથી લાઈવ પરફોર્મ પણ કર્યા છે. આજે જો રફી સાહેબ માટે આજે જો રફી સાહેબ માટે હું જો ગઈશ તો અત્યારે રફી સાહેબના મંદિરમાં જ બેઠો છું, તો એક લાઈન જરૂર ગઈશ लैला मजनू ની. तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर पे आया हूँ. અચ્છા, હવે એમને ધારો કે યાદ કરવો હોય, ખાસ કરીને આપણે જેમ રફી સાહેબને યાદ કરો તો ગીતોથી કરવાનો, એક એમને ભૂલો હોય તો ખાસ એમ કે એમને યાદ કરવો હોય તો કે તુમ મુझे यूं भुला न पाओगे, એક જોરદાર ગીત છે. જે ગીત ચિરાગભાઈ તમે સંભળાવો એની 2-3 લાઈનો, કારણ કે મેં એક લિસ્ટ તૈયાર કર્યું છે જેટલું મને ખબર પડે ને જેટલું રફી સાહેબને હું ઓળખ્યો છું એ પ્રમાણેનું. તો તમારી પાસેથી હું ગીતો સાંભળવા માંગીશ. તુમ મુझे यूं भुला न पाओगे. हाँ, તમે બહુ જ પરફેક્ટ ગીત શરૂ કર્યું છે. तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं. मोहसिन भाई, मोहम्मद रफी साहब की एक बात बता दीजिए जो कि हमारे जो दर्शक है, देखने वाले हैं, उनको शायद ना मालूम हो या तो मालूम भी हो, फिर से सुनना चाहे आपके मुंह से.
मोहसिन भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि अब शायद ही ऐसा कोई दीवाना होगा मोहम्मद रफी साहब का जो उनकी जिंदगी की छोटी से छोटी निजी बातों को नहीं जानता होगा। रफी साहब की दीवानगी उनके सामने वालों के सर चढ़ के होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे इंसान। 56 ईयर्स की जिंदगी बहुत, वैसे देखी जाए तो छोटी सी, और उसमें 36 साल का उनका फिल्मी सफर रहा। नगमों की तादाद के बारे में काफी मनमुटाव है, काफी बहस छिड़ी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी गाया है वो ना भूत ना भविष्यति है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारी लोकशाही को, हमारी जमहूरियत को, जो हमारी जमहूरियत को मजबूत करते हैं, वो तीन स्तंभ हैं, अशोक स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में फिल्मी संगीत को जिन तीन स्तंभों ने थामे रखा है, उन तीन स्तंभों में एक नाम है मोहम्मद रफी का। चलिए, ચિરાગ ભાઈ, શમ્મી કપૂરને મોહમ્મદ રફીનો અવાજ બહુ જ સેટ થતો હતો, શૂટ થતો હતો. એવો તો દરેક જે ગાયક કલાકાર છે એની સાથે અથવા તો એક્ટર સાથે શૂટ થતો હતો. પણ ખાસ કરીને એહસાન તેરા હોગા મુझ પર એ ગીત क्या બહુ बात, એ જમાનામાં બહુ એણે ધમાકેદાર એ જમાવ્યું હતું. જરા એની બે લાઇન્સ અમારા દર્શક મિત્રોને. ચોક્કસ. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मुहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। वाह मोहसिन भाई, और एक छोटी सी बात बताइए रफी साहब की। रफी साहब की बहुत सारी खासियत इस जिंदगी में। एक तो सभी से बड़े खुलूस से मिलते थे। वो छोटा शख्स हो या कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो, सभी के लिए समान आदर। बहुत ही खूबसूरत नेचर था। और एक बात खास मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो खाने पीने के बड़े बड़े शौकीन थे। उनको लज्जतदार खाना हमेशा आकर्षित करता था। और वो छोटे बच्चे की तरह, मतलब कोई भी पसंद का खाना मिल जाता था तो बिल्कुल दुनिया से बेफिक्र होकर टूट पड़ते थे। और बादाम वाली चाय, ये रफी साहब का एक बहुत ही, कहते हैं, पसंदीदा पीना जिसको हम कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि उनकी आवाज में इतना नशीलापन कैसे था, इतना मधुर। तो वो गुजराती में कहूँ तो एक दारूडिया नता पण एक चारूडिया था। અને એવી ચા પીતા હતા કે જેનો નશો આપણા સૌને બી આપણે પીવડાયો છે। બદામ वाली चाय पिया करते थे। और खास अपना घर से वो थर्मस में बना करके ले जाते थे रिकॉर्डिंग के दरमियान। और वो थर्मस जो है वो उनके साले साहब के पास सिक्योर रहता था। रफी साहब के अलावा किसी को उसको टच करने की परमिशन नहीं थी। હા, તો ફરી એકવાર ચિરાગભાઈ, તમે તમારો કાર્યક્રમ શરૂ કરો તો પહેલું ગીત કયું શરૂ કરો છો? લેટ મી આસ્ક યુ ધીસ. મેં તો મારું લિસ્ટ મેં તો મારા પ્રમાણે બનાવ્યું છે, પણ ચિરાગભાઈની દ્રષ્ટિએ ધ બેસ્ટ ઓફ રફી સોંગ, ઓર રાધર યુ મસ્ટ બી સ્ટાર્ટિંગ યોર શો વિથ ધેટ. કયું ગીત? રફી સાહેબનો પ્રોગ્રામ હું કરું તો હંમેશા દેવાનંદ સાહેબનું એક ગીત કહેતો હોઉં છું। અને એ ગીત મારા દિલની ખૂબ નજીક છે અને લોકોને પણ બહુ જ પ્રિય છે। જરૂર। ओहो हो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चांद।
मोहसिन जी कहते हैं कि चित्रगुप्त साहब के बहुत नजदीक थे, जो म्यूजिशियन थे, और खास करके वो दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी थी, बाजू बाजू में भी रहते थे, पड़ोसी थे, पतंग बहुत उड़ाने का शौक था उनको। हाँ हाँ मोहसिन जी भाई जी। कुछ और बताइए कुछ रफी साहब के बारे में। पतंग उड़ाने का काफी शौक था, और हम्म बिल्कुल चित्रगुप्त सब बड़े संगीतकार थे, वो हम्म करीब में रहते थे। हम्म और रवि साहब की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, खास करके मैं आपको उनकी और किशोरदा और मुकेश जी की दोस्ती के बारे में कहूँ, हम्म तो ये ऐसे कॉम्पिटिटर थे, ऐसे प्रतिस्पर्धी थे कि जो कहने को तो एक दूसरे के मतलब प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत गहरी आत्मीयता थी, इन तीनों के, बल्कि सभी के बीच में। और इसकी मिसाल कई बार मन्ना डे साहब ने भी अपने लाइव इंटरव्यू में रफी साहब को बहुत दिल से समर्पित करते हुए बहुत सारी बातें बताई। किशोरदा के बहुत सारे इंटरव्यूज आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मुकेश जी ने भी एक दो जगह पे ऐसा बताया है। उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने भी मुकेश जी के बारे में काफी कुछ कहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इतने विवेकी, इतने विनम्र और इतने जिंदा दिल शख्स थे रफी साहब कि हर कोई उनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करता था, प्यार करता था। उनकी जीते जी भी, और आज उनके जाने के 40 साल के बाद भी उनके जाने के रफी 40 साहब साल को के बाद मोहब्बत भी करने वालों रवि की साहब को तादाद मोहब्बत करने वालों की तादाद देश में ही नहीं देश में बल्कि ही पूरी नहीं दुनिया में बढ़ रही है। बढ़ रही है। ચિરાગ ભાઈ, તમને પૂછવાનું મન થાય, સુનિલ દત્ત સાહેબનું એક બહુ જબરજસ્ત સોંગ છે અને આઈ થિંક લોકોના દિલની પણ બહુ નજીક છે. 1964 માં હતી આ ફિલ્મ આવી હતી, ગજબ ગજબ ગઝલ કરીને, રાઈટ. રંગ और नूर की बारात. आई थिंक આ એક એવું જબરજસ્ત ગીત છે કે જે રફીના ચાહકો ડેફિનેટલી સાંભળવા તો માંગતા હશે, પણ એમના માઇન્ડમાં પણ હશે કે એના જો ટોપ 10 ગીતો ગણવા હોય તો આ ગીત પણ એમાં આવે. એવરગ્રીન ગીત છે, એની બરાબર પણ છે, એક ઝલક આપો અમને. ચોક્કસ. रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं. रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं. मोहसिन भाई, आप जहाँ पर बैठे हैं, रफी साहब का मंदिर है, उस मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए, और एक और बात भी बता दीजिए रफी साहब की. जी बिल्कुल, ये बहुत पाकीज़ा जगह है, और पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ऐसी जगह जहाँ दीवानगी की जो हद है वो मतलब मतलब उसकी मिसाल आप देखो. राइट. और हमारे उमेश माखीजा जी को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है. रवि साहब के एक बहुत खास बात मैं बताना चाहता हूँ. बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अनजाने में उनके बारे में फैली है, चाहे वो लता जी के साथ लेकर के रॉयल्टी के बारे में हो, या कुछ छोटे मोटे संगीतकारों के साथ हो, या किशोर कुमार जी के साथ कोई मतलब सब मनगढ़ंत बहुत सारी कहानियां हैं. आपको पता होगा किशोर कुमार जी का जबरदस्त राजेश खन्ना जी की आराधना, और रफी साहब के गाने कम होने लगे. तो बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियां और कथाएं कहते हैं, लेकिन उसके पीछे की एक सच्चाई ये है. उन दिनों रफी साहब ने हज करके आए, जैसा कि अभी ये हमारे मजहब इस्लाम ये महीना जो है आज का जो दिन है वो हज का दिन है. तो इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हज करके आए तो रफी साहब ने सोचा कि अब मुझे नहीं जाना है, मैं हाजी हो गया हूँ, मजहबी लिहाज से लोग खर्च करेंगे मुझे, जो धार्मिक प्रतिनिधि होते हैं मौलवी वगैरह, वो शायद गलत नजरों से देखें, मुझे गलत सलत बोले, तो वो कोई कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते थे. तो उन्होंने कुछ स्वैच्छिक निवृत्ति ली. लेकिन जब बातें गलत उड़ने लगी कि किशोर कुमार के आने से रफी साहब के नाम की मतलब जो आती है वो बंद हो गई, किशोर कुमार छा गए, रफी साहब ये वो ब्ला ब्ला.
तो वो थोड़े वो दुखी थोड़े हुए, दुखी हुए, व्यथित हुए। व्यथित हुए। और नौशाद जी ने जाकर उनको समझाया कि तुम्हारी जो तुम्हारी जो आवाज है आवाज है वो तुम्हारी अपनी वो नहीं है, तुम्हारी अपनी नहीं है, ये खुदा ये की खुदा देन की है, देन है, और अब ये हिंदुस्तान के अवाम की हो और चुकी ये है। तो हिंदुस्तान तुम के आवाम इसको की हो चुकी है, कमरे में या घर तो में तुम कैद करके नहीं इसको रख सकते। कमरे में या घर में तो कैद ये गाना ही है नहीं रख क्योंकि सकते। सही सही तुम्हारी बात है। ये आवाज गाना ही है जो है वो दुनिया के लिए अमानत है, तो तुम अमानत में खयानत कर रहे हो। ચિરાગભાઈ, ખાસ કરીને એમ કહેવાય છે કે યુસુફ સાહેબ એટલે દિલીપ કુમારને મોહમ્મદ રફી સાહેબનો અવાજ જોરદાર સૂટ થતો હતો. લગભગ બધા જ આપણે જેમ વાત કરી બધા એક્ટર્સને સૂટ થતો હતો, પણ ખાસ કરીને દિલીપ કુમાર અને મોહમ્મદ રફી આ બંનેને યાદ કરીને કયું ગીત તમારા મનમાં આવે? તમને યોર ચોઇસ. દિલીપ કુમાર સાહેબ ઉપર તો રફી સાહેબના બહુ જ બધા ગીતો છે જાણીતા, જેમ કે આજ પુરાની રાહો છે, મધુબન મેં રાધિકા. પણ મને ગમતું ગીત છે એ છે, હું જરા એની બે લાઈન ગઈશ જરૂર જરૂર. કે આજની પરિસ્થિતિને પણ બહુ જ સૂટ કરે છે, આજને આપણી જે માણસોની માણસાઈને. ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना, ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना, ना आदमी का को भरोसा. मोहसिन भाई, जब आदमी का भरोसा आदमी से उठ गया है, इस तरह की बातें इस वक्त में सुनाई देती. और खैर काफी चीजें जो पहले कही गई है अब सही भी होने लगी है, ऐसी बात नहीं है. क्या कहना चाहेंगे अगर जब आदमी को आदमी के ऊपर से भरोसा उठ गया है, उस वक्त हम ऐसे शख्स की बात करते हैं कि जो हमेशा भरोसेमंद रहे हैं. बिल्कुल हमेशा भरोसेमंद रहे, इंसानियत की, मोहब्बत की, भाईचारगी की ऐसी पवित्र मिसाल हमारे देश से इस अद्भुत शख्सियत ने दी है कि दुनिया तलाशती है आज तक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की सानी को. रफी साहब की तो बस बातें कभी खत्म नहीं हुई, ठीक उन्हीं की गीत की तरह, उन्हीं की आवाज की तरह कि दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा. जब भी रफी साहब के बारे में कुछ भी हम सोचते हैं तो बस ऐसा होता है कि सोचते ही जाएं, बोलते ही जाएं, गाते ही जाएं, वक्त ठहर सा जाता है. ચિરાગભાઈ, 1949 એક દુલારી ફિલ્મ હતી અને એનું એક ગીત છે. આજની તારીખમાં આ ગીત એટલું જ હિટ છે, સુપર હિટ છે રાધર, કે સુહાની રાત ઢળ ચૂકી. આ ગીત તમે સંભળાવો તો સારું, કારણ કે અમારા દર્શક મિત્રોને કદાચ આ બધા ગીતો એવા છે કે જે ડેફિનેટલી એમના હૃદયમાં હશે જ અને સાંભળવા માંગતા હશે. ચિરાગભાઈ. અશોકભાઈ, આ ગીત માટે એટલું જ કહીશ કે અમર થઈ ગયેલું આ ગીત છે. અને આ ગીત માટે હું હંમેશા એક જ વસ્તુ કહું છું કે રફી સાહેબ જન્મ્યા હતા 24 ડિસેમ્બર 1924, અને દુલારી તમે કીધું એમ 1949 ની ફિલ્મ છે. એટલે 1924 અને 1949 એટલે ત્યારે આપણે ગણીએ તો રફી સાહેબની ઉંમર 25 વર્ષની હોય. હવે 25 વર્ષનો એક નવ યુવાન સુહાની રાત ઢળ ચૂકી ગાય દુલારીનું, અને આટલો બધો ઘેરો બેઝ વાળો અવાજ, 25 વર્ષના યુવાનનો આવો અવાજ કેવી રીતે હોઈ શકે? એટલે હવે તમે પણ જયારે આ ગીત સાંભળો ને ફરીથી ઘરે જઈને, ત્યારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો, દિમાગમાં, કે 25 વર્ષનો એક તરુણ યુવાન આ ગીત ગાઈ રહ્યો છે. એની બે લીટી જરૂર સંભળાવીશ. પ્લીઝ. સુહાની રાત ઢલ ચુકી, ના જાને તુમ કબ आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे,
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। મોહસિન ભાઈ આપ कुछ बता दीजिए, उसके बाद चिराग भाई નું એક ગીત લઈશું આપણે। મોહસિન ભાઈ, मैं ये जो गाना इन्होंने गाया, बहुत खूबसूरत बात कही कि 25 साल का एक नौजवान, सोचिए किस हद तक ये गायकी में असर पैदा कर सकता है। ये केवल और केवल मोहम्मद रफी साहब और खुदा, उस कुदरत, उस ईश्वर की देन थी इस व्यक्ति को कि उसने जिस उम्र में जिस वक्त जो चाहा वो किया। 25 साल का नौजवान जब ऐसी खरज में गा सकता है, और यही मोहम्मद रफी साहब ने जब 51-52 साल की उम्र में 25 साल के नौजवान ऋषि कपूर को आवाज दी और दर्दे दिल दर्दे जिगर गाया। सही बात। तो ये देख आप सोच सकते हैं कि किस कदर वो। ये गाने के बारे में एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ, और मैंने मेरी अपनी आंखों से ये मुजस्समा देखा है। जब हम सूरीनाम की टूर पे थे और बंकी पाठक जी ने ये जब गाना गाया तो 5-5.5 हजार की ऑडियंस थी वहां पर। इंडियन एयरलाइन डे के मौके पर हमने वहां प्रोग्राम किया था। तो अशोक भाई वो 5-5.5 हजार का जो मजमा है वो पूरा अपनी जगह से खड़ा हो गया, ह्यूमन चेन बनाई उन्होंने, और पूरा हिलते हुए रिदम में वो पूरा गाना गा रहे थे और साथ में रो रहे थे। ओह माय गॉड। तो ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें नहीं पता था कि ये गाने का क्या करिश्मा और क्या जादू है, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ हमने पूछा वहां के लोगों से, तो कहा कि भाई ये गाना यहाँ के लोगों के इतने करीब है दिलों के कि सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और दूसरे 2-3 और छोटे छोटे टापू है, वहां पर इसको सेकंड नेशनल एंथम की तरह लोग रिस्पेक्ट देते हैं। ચિરાગ ભાઈ, છેલ્લે ખાસ કરીને રફી સાહેબને યાદ કરવા માટે, આમ તો યાદ જ છે, યાદમાં છે, હૃદયમાં પણ છે, છેલ્લું ગીત ધારો કે એમને યાદ કરીને કહેવું હોય તો કયું ગીત કહેશો? છેલ્લું ગીત ગાતા પહેલા અશોકભાઈ ખાલી એક વાત કહી દઉં કે હમણાં મોહસિનભાઈએ એક ફ્રેમ હાથમાં રાખેલી હતી, કદાચ તમારું ધ્યાન નથી। અમે લોકો જે રફી સાહેબના મંદિરમાં બેઠા છીએ જી જી, એને આજે એક સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું છે, જે આપણા અમદાવાદ માટે અને રફી સાહેબના દરેક ચાહકો માટે ગૌરવની વાત છે કે ઉમેશભાઈએ બનાવેલું આ રફી મંદિર આજે ઇન્ડિયા વર્લ્ડ રેકોર્ડ તરફથી પ્રમાણિત થઈને એને સર્ટિફિકેટ આપવામાં મારી આવ્યું પાસે છે। સમયનો થોડો અભાવ છે ચિરાગભાઈ, એટલા માટે મારે રોકવો પડે છે। ધેટ એ સ્ટોરી આપણે ઓલરેડી લીધેલી છે। ચિરાગભાઈ, છેલ્લી બે લાઈન। ओके। दिल का सोना सास तराना ढूंढेगा, तेरे निगाह नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सास तराना ढूंढेगा, तेरे निगाह नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। ચલો, થેન્ક યુ સો મચ મોહસિનભાઈ અને ચિરાગભાઈ, થેન્ક યુ। કારણ કે એવું છે કે રફી સાહેબના એટલા બધા ગીતો છે ને એટલું સિલેક્શન બી કરવું બહુ મુશ્કેલ છે। થેન્ક યુ સો મચ બોથ ઓફ, અને ગ્રેટ જોબ, અને બહુ જ મજા આવી। થેન્ક યુ વેરી મચ। તો દોસ્તો, ક્યાંક ને ક્યાંક એમ કહેવું પડે કે તુમ મુझे यूं भुला न पाओगे। આ કાર્યક્રમને અહીંયા સમાપ્ત કરું છું। નમસ્કાર।